Hello, good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग वीडियो नंबर 3 है लेसन फैक्टराइजेशन को लेकर। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 14.1। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के साथ हम एक्सप्लेनिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक नज़र क्वेश्चन पर डालते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं जिसका हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 12x एंड 36। सो फैक्टर ऑफ 12x इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई x, और 36 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 हियर कॉमन फैक्टर इज 2, 2 एंड 3 एंड 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12x और 36 इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर मिलेगा 12। दूसरा क्वेश्चन 2y एंड 22xy। सबसे पहले 2y इज इक्वल टू 2 × y, और 22xy के फैक्टर होंगे 2 × 11 × x × y। So here the common factors are 2 and y, and therefore 2 × y is equal to 2y। तो कॉमन फैक्टर मिलेगा 2y। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर 14pq एंड 28p³ सबसे पहले 14pq के फैक्टर होंगे 2 × 7 × p और 28p² के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 7 × p 2 टाइम्स कॉमन फैक्टर होगा 2, 7p एंड q, एंड 2 × 7 × p इक्वल टू 14pq। ये कॉमन फैक्टर्स मिलेगा। एक और क्वेश्चन, 3 टर्म्स यहाँ पर हैं 2x, 3x² एंड 4। सबसे पहले 2x के फैक्टर्स होंगे 2 × x, 3x² के फैक्टर होंगे 3 × x और 4 के फैक्टर है 2 × 2। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो तीनों में कॉमन हो ऐसा कोई नहीं है। सो दैट्स वाई द कॉमन फैक्टर इज कंसिडर 1। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें 1 मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6abc, इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × a × b × c, और 24ab² के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × a × b और 12a² के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × a × b। So here common factors are 2, 3, a and b, and 2 × 3, 2 3s are 6, and a × b means ab। तो यहाँ कॉमन फैक्टर बनेगा 6ab। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर हमें दिया है 16x³ - 4x² एंड 32x। So 16x³ means 2 × 2 × 2 × 2 × x 3 times, minus 4x², that means -1 × 2 × 2 × x 2 times, and 32x means 2 × 2 × 2 × 2 × 2 into multiply x। So here common factors are 2, 2 and x, and 2 × 2 × x is equal to 4x. So 4x is the common factor. Next one, अब है हमारे सामने 10pq, 20qr एंड 30rp। सबसे पहले फैक्टर्स 10pq के 2 × 5 × p इंटू मल्टीप्लाई q। 20qr इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × q इंटू r, और 30rp के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × 5 × r इंटू मल्टीप्लाई p। So common factors are 2 and 5, and therefore 2 5s are 10. So 10 is the common factor। एक और है 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 3x² y³ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई 3 टाइम्स y। 10x³ y² मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 multiply x 3 times multiply y 2 times, and 6x² y² z, that means 2 multiply 3 multiply x 2 times multiply y 2 times and multiply z। So common factors are x, x, y and y, that means x multiply y multiply y। So common factors is x² y²।
अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 7x माइनस 42। 7x का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई x और 42 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। Here the common factors is 7, so therefore 7x minus 42 equal to 7 is the common factor and into bracket x minus 6. Second one, 6p minus 12q. 6p is equal to 2 multiply 3 multiply p and 12q is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply q. The common factors are 2 and 6. So therefore 6p minus 12q is equal to 2 multiply 3 multiply p minus 2 multiply 2 multiply 3 multiply q. So therefore 2 multiply 3 into big bracket p minus small bracket 2 multiply q bracket over. So therefore 6 into small bracket p minus 2q. Third one, 7a square plus 14a. 7a square is equal to 7 multiply a 2 times and 14a, that means 2 multiply 7 multiply a. Here the common factors are 7 and a. So therefore 7a square plus 14a, we can write here 7 multiply a plus 2 multiply 7 multiply a. 7 into a is the common both the terms. So 7 multiply a into bracket a plus 2. Then we can write here 7a into bracket a plus 2. Next one, minus 16z plus 20z cube. So 16z, that means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 into z, and 20z cube, that means 2 multiply 2 multiply 5 into z multiply by 3 times. So the common factors are 2, 2 and z. So therefore minus 16z plus 20z cube equal to minus 2 into the bracket 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply z plus second bracket 2 multiply 2 multiply 5 multiply z multiply z multiply z. So therefore first bracket 2 multiply 2 multiply z is the common both the terms, and into the big bracket minus into small bracket 2 multiply 2 plus another small bracket 5 multiply z bracket over big bracket also over. So finally we get 4z into bracket minus 4 plus 5z square. One more example, 20 L square M plus 30 AL M. So 20 L square M, we can write here 2 multiply 5 multiply L into M, and 30 AL M, that means 3 multiply 5 multiply 3 multiply A into L into M. So the common factors are 2, 5, L and M. Therefore 20 L square M plus 30 AL M is equal to 2 multiply 5 multiply L into M is the common, and into the big bracket 2 multiply L plus 3 multiply A. So therefore we write here 10 LM into bracket 2L plus 3A. 5x square, that means the factor of 5 multiply x multiply y, and 15xy square is equal to 3 multiply 5 multiply x multiply y into y. So the common factors are 5x and y. So we can write here 5x multiply y minus 3 multiply 5 multiply x multiply y into y. So 5 into x into y is the common one, and into this big bracket x minus small bracket 3 multiply y. So we can write here 5x into bracket x minus 3y. एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर से। सबसे पहले हम राइट करेंगे ऑल थ्री टर्म्स को। 2 multiply 5 multiply a, ये फैक्टर्स होंगे 10 स्क्वायर के, माइनस 15 बी स्क्वायर के फैक्टर होंगे 3 multiply 5 multiply b इंटू बी, प्लस 20 सी स्क्वायर के फैक्टर होंगे 2 multiply 5 multiply c। अब इस तीनों में से हम देख रहे हैं कि 5 इज़ द कॉमन फैक्टर, तो 5 को बाहर लिखते हुए बिग ब्रैकेट के अंदर ऑल तीन स्मॉल ब्रैकेट्स में टर्म्स को दिखाएंगे।
बाकी बचे हुए रिमेनिंग फैक्टर्स के साथ। तो 5 इंटू ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए माइनस सेकंड ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बी और थर्ड ब्रैकेट में प्लस करते हुए 2 मल्टीप्लाई सी। तो प्रोडक्ट्स इस तरह से लिखी जाएगी 5 इंटू ब्रैकेट 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर कंटिन्यू -4a² प्लस 4b माइनस 4ca। 4a² का मतलब है 2 मल्टीप्लाई ए 2 टाइम्स। 4ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी और 4ca का मतलब है 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। So the common factors are 2, 2 and a, -4a² प्लस 4b माइनस 4ca। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 2 मल्टीप्लाई ए और बिग ब्रैकेट में बाकी टर्म्स रहेंगे -a प्लस b माइनस c। सो देयरफॉर 4a इंटू ब्रैकेट -a प्लस b माइनस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। xy² इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। xyz² इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। कॉमन फैक्टर यहाँ पर बनेगा xyz, जैसे कॉमन निकालते हुए x² yz प्लस xy² प्लस xyz² इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z प्लस सेकंड ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z और तीसरे में x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। तो हमें मिलेगा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। सो फाइनली वी गेट xyz इंटू ब्रैकेट x प्लस y प्लस z। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ax² जिसका मतलब होगा a मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई y और bx² का मतलब होगा b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स और cxyz का मतलब होगा c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिलेंगे x और y, जिसे सबसे पहले हम कॉमन निकाल कर बाहर ब्रैकेट में रखेंगे x मल्टीप्लाई y और बिग ब्रैकेट्स में हमें 3 यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट मिलेंगे, पहला a मल्टीप्लाई x प्लस दूसरा b मल्टीप्लाई y और तीसरा c मल्टीप्लाई z। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हुए फाइनल आंसर मिलेगा xy इंटू ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz। तो ये हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।